Hello student, this is Assistant Professor Ramkaur Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is software engineering. So let us start with the fourth chapter of software engineering, that is requirement engineering. In this chapter we will going to see introduction, requirement elicitation, requirement elaboration, requirement gathering, feasibility study, fact finding techniques, SRS. So let us start with a brief introduction. Now, as you all know, designing and building computer software is a challenging job. Okay, but when we are talking about software re-engineering, in this chapter we will going to see how we can re-engineer or how we can recreate the same software by using the description, by adding the new feature and the functionality, and by creating a new target for a software. According to our definition of requirement, a condition or capability needed by a user to solve a problem or achieve an object or a goal. Okay, in this way we will going to create a condition where a capability needed by a user, that means the requirement of the user, will be achieved, or whatever the problem or whatever the bugs are present in that software, we will going to just remove all of them and we will fix it, and we will just achieve a common goal or the objective. Now let us see the types of requirement. Okay, mainly the types of requirement are divided into four parts. First one is a functional requirement, next one is a non-functional requirement, and the last one is a domain requirement. So let us see the first point, that is a functional requirement. Okay, now a functional requirement that a system or a component must be able to perform. Okay, जैसे कि अगर हम लोगों ने कोई फंक्शन क्रिएट किया है या फिर हम कुछ एक्स्ट्रा की कमांड्स ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम कोई कमांड इनपुट में दे रहे हैं या आउटपुट में दे रहे हैं या फिर हमने एक्स्ट्रा की पेन ड्राइव अटैच की है, तो अगर हम कुछ भी वहाँ पे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो टास्क को हम परफॉर्म करने के लिए उसे इनपुट दे रहे हैं, इनपुट के बाद आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है या पेन ड्राइव अटैच की है तो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, ये सारी चीज़ों को हम बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जब भी हम कोई भी एक्शन करते हैं या फिर हम ऐसे कर्सर भी मूव कर रहे हैं तो हम लोगों को वो दिखती है, ठीक है, कर्सर का लोगो दिख रहा है। दिस रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब द इंटरैक्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर विद इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारा इंटरैक्शन होता है सॉफ्टवेयर के साथ प्लस हमारे इन्वायरमेंट के साथ। Then specify the input, output, external interface and functions that should be included in the software. ये सारी चीज़ें हम लोगों के सॉफ्टवेयर के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये एक इंटरफेस करेगा, इंटरैक्शन क्रिएट करेगा बिटवीन अ सॉफ्टवेयर और बिटवीन अ environment. In this environment we can have our input, output or any external storage device. But when we are talking about a non-functional requirement, that is also known as a quality requirement related to a system attributes. ठीक है, अब जब हम बात करते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में, जैसे ऑलरेडी कहा जाता है क्वालिटी रिक्वायरमेंट, और ये रिलेट होती है हमारे सिस्टम के एट्रीब्यूट के साथ, प्लस हमारे रिलायबिलिटी के साथ, और प्लस हमारे रिस्पॉन्स टाइम के साथ। अब यहाँ पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर हम लोगों ने कितना टाइम लिया है कोई पर्सनल थिंग को रिस्पॉन्स करने के लिए, हम लोगों के बजट क्या है, हमारा पॉलिसी क्या डिसाइड हो रहा है, रिक्वायरमेंट यूज़र की क्या डिसाइड हो रही है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, जो हमारे मतलब कोडिंग में हम लोग ऐड नहीं करने वाले हैं या फिर टेस्टिंग में हम लोग ऐड नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करने वाले हैं हमारी पॉलिसी के वे में, बजट के वे में, यूज़र की रिक्वायरमेंट के वे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। Now the third one is a domain requirement. Okay, in this software engineering, the requirement that are derived from the application domain of a system instead from the need of the user and known as a domain requirement. Domain requirement का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी requirement है हमारे यहाँ पे यूज़र की, ये सारी की सारी requirement हम लोग कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बड़ा बना होगा, ठीक है, हम लोग वो जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर प्रेजेंट है उसी को हम री इंजीनियर रिक्रिएट करेंगे।
अब जब हम इसे रिक्रिएट करेंगे, हम लोग यहाँ पे नीड यूज़र की देखेंगे प्लस हमारे रिक्वायरमेंट यूज़र की देखेंगे, और वही पुराने सॉफ्टवेयर के अंदर उसे चेंजेस करके एडवांस में, ठीक है, एडवांस में हम उसे न्यू चेंजेस करके अपडेटेड सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल करवा के देंगे। आया समझ में? Next one is a requirement engineering task. Now, as you all know, requirement engineering task is a process where it determines the specification of a software. Okay, that is known as a requirement engineering process. अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर स्पेसिफिकेशन हमारे सॉफ्टवेयर का डिसाइड होता है, वो सारे स्पेसिफिकेशन हम चेक करते हैं और उन्हें अपडेट करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं. Total in this we will going to see a 7 different tasks that is a requirement engineering. All these tasks are present as a functional stress. Okay, ये एक स्ट्रेस की तरफ काम करेगा कस्टमर के लिए, और ये कस्टमर की स्ट्रेस है उसे रिलीज करने के लिए हम लोग री इंजीनियरिंग का पार्ट क्रिएट करेंगे. ऑल दिस टास्क कलेक्ट फ्रॉम द स्टोर बेस्ड फॉर द सॉफ्टवेयर डिजाइन. ओके, अब यहाँ पे हम लोग ये जो 7 टास्क है, अलग अलग टास्क है, ये सारे के टास्क को हम लोग ऑलरेडी एक फॉर्म के अंदर स्टोर करके रखा है. इसके 7 लेवल्स है, 7 प्रोसेस है, री इंजीनियरिंग के 7 प्रोसेस, प्री डिफाइंड प्रोसेस है, हम वो देखेंगे. फर्स्ट वन होता है इंस्पेक्शन, नेक्स्ट वन होता है इलिसिटेशन, नेक्स्ट वन इलैबोरेशन, नेगोशिएशन, specification, validation, requirements management. So let us see the diagram. Okay, as you can see, यूज़र को बहुत सारा स्ट्रेस हुआ है. ओके, यूज़र की स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, उसे सेटिस्फाई करने के लिए जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड हमारे पास सॉफ्टवेयर वो लेके आएगा, सेम सॉफ्टवेयर को हम उसे अपडेट करेंगे, री इंजीनियर करेंगे. सो हियर इज एन यूज़र. ठीक है, अब यूज़र के पास होगा inspection, elicitation, elaboration, that is a final functional requirement. Next one is a requirement specification, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो हम स्पेसिफिकेशन करेंगे, चेक करेंगे. नेगोशिएशन प्रेजेंट होगा, उसी के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन टेस्ट होगा. नेक्स्ट अभी यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट है वो टेस्टर के थ्रू टेस्ट की जाएगी. ठीक है, एज अ सिस्टम टेस्टिंग के थ्रू, और वहाँ पे वैलिडेशन प्रेजेंट है क्या नहीं चेक किए जाएंगे, और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट हमारा फुलफिल हो जाएगा. तो लेट अस सी inspection requirement. Okay, it means the beginning, and it tells about how software project gets initialized. In this way we will going to see the first point, that is a beginning, and in this beginning it will going to tell us how a software should initialize. It is established as a base understanding of a pro and nature of the solution. During inspection, the requirement engineer asks a set of following questions. First one, basic understanding of the problem. Next one, the people who want a solution. Now the third one, the nature of the solution that is described and desired by the customer. And the fourth one, the effectiveness of a preliminary communication and elaboration of a customer and the developer. ओके, इंस्पेक्शन में सबसे पहले हमारी पहली चीज़ ये होती है कि हमारी री इंजीनियर वालों की ये न्यू बिगनिंग होती है, और ये न्यू बिगनिंग के अंदर हमें कस्टमर की तरफ से बताया जाता है कि यहाँ पे उसका जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे कैसे क्रिएट होते हैं. ठीक है, और हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इसकी इनिशियलाइजेशन की प्रोसेस कोडिंग के थ्रू. नेक्स्ट वन, हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स हमें कस्टमर बता रहा है या उसने जो शो की है पुराने सॉफ्टवेयर के अंदर, वो हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है वो हम वो पर्सन को बताएंगे. नेक्स्ट वन, वहाँ पे हम चेक करेंगे जो हम सॉल्यूशन उसे बता रहे हैं वो नेचुरली पॉसिबल है या नहीं है. ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम जब उन्हें बताएंगे तो वो नेचुरली चेंज हो सकती है, सॉल्यूशन नेचुरली उसका हम अपडेट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो भी हम डिस्कस करेंगे. लास्ट में यहाँ पे डिसाइड होगा
कि हम लोगों का कोलैबोरेशन कस्टमर के साथ या फिर हमारे जो डेवलपर है उनके साथ कैसा होगा। वहाँ पे टाइप होगा, टाइम डिसाइड होगा, बजट डिसाइड होगा, गाइडलाइन डिसाइड होगी, पॉलिसी डिसाइड होगी, ये सारी चीज़ें इंस्पेक्शन के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट वन इज ए elicitation. It means asking the customer or the user and other people about the object. ठीक है, अभी यहाँ पे elicitation के अंदर क्या हो जाएगा, या अभी यहाँ पे elicitation के अंदर जो भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेवलपर है, डेवलपर कस्टमर को उसके जो भी वहाँ पे सेटिस्फाइड करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स या उसे क्या क्या चेंजेस है, कौन से उसे अपडेटेड वर्जन्स चाहिए, क्या अपडेटेड चाहिए, क्यों चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग पता करेंगे। This is also known as gathering of requirement. Here are the requirement. Now the first one, identify with the help of customer and existing system process. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टमर की हेल्प के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पुराने वाले सॉफ्टवेयर में कौन सी प्रोसेस प्रेजेंट थी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो उन लोगों को मैसेज डिस्प्ले होता था कि योर डेटा इज सबमिटेड सक्सेसफुली, या फिर उन्होंने कुछ डेटा माइनस किया तो उन्हें दिखता था। ठीक है, नाउ लेट अस सी इन ब्रीफ problem of scope. The customer give unnecessary technical details rather than clarity of overall system object. ठीक है, अब यहाँ पे कभी कभी कस्टमर्स क्या करते हैं, कस्टमर्स हमें बताते भी नहीं है कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है और वो टेक्निकल इशू ही बताना शुरू कर देते हैं। मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस उन्हें ये पता होना चाहिए कि आप लोगों के कौन से बटन्स या कौन से आप लोगों के फॉर्म डिजाइन करने के बाद रिक्वायरमेंट आपकी जो थी वो स्पेसिफाई क्यों नहीं हो रही, क्या क्या चाहिए था आपका वो। Next one, problem of understanding. Poor understanding between the customer and the developer regarding various aspects of the project like capability, limitation of computing environment. अगर आपका पुअर कम्युनिकेशन है आपके कस्टमर के साथ या फिर आपके डेवलपर के साथ, तभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमें पता नहीं चलता कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या थी और हमारे डेवलपर क्या बोलना चाहते थे। तो ये प्रॉब्लम हमें थोड़ी सी कम करनी चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, लास्ट वन, प्रॉब्लम ऑफ वॉलेटिलिटी। ओके, अब यहाँ पे वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर फॉर एग्जांपल बोला है 10 दिन में मुझे ये चेंजेस चाहिए और वो पर्सन ने 10 दिन का टाइम देने के बाद हम लोगों को 2 दिन में वो सारे चेंजेस मांगे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जल्दी से चेंज हो जाना। तो इसी को इन्होंने यहाँ पे बोला है प्रॉब्लम ऑफ वॉलेटिलिटी। ओके, वोलैटिलिटी का मतलब होता है कि कभी भी यूज़र ने कुछ भी बोला है, अगर यूज़र ने जो बोला है चीज़ सडनली वो चेंज हो जाता है टाइम के साथ या बजट के साथ। ठीक है, अगर बजट हमारा 50,000 का डिसाइड हुआ है और वो सडनली बोल रहा है कि आई विल गिव यू ओनली 35,000, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ए इलैबोरेशन। ओके, इलैबोरेशन मीन्स refinements of the requirement analysis and design. During elaboration, the software engineer takes the information obtained from the customer during inspection and elicitation. अब यहाँ पे इलेबोरेशन के अंदर रिफाइनमेंट होगा, हमारा जो डिज़ाइन है और रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में डिटेल स्टडी होगी। अब ये सारे डिज़ाइन और यहाँ पे डिटेल स्टडी रिक्वायरमेंट की डेवलपर की साइड पे होगी। और ये डेवलपर की साइड पे कैसे होगी, जब डेवलपर ने अपने अपने टाइप से कस्टमर से इंस्पेक्शन और एलिसिटेशन का पार्ट यूज़ किया था, तो तब उन लोगों को बहुत सारा डेटा पता चलता है। तो जब ये डेटा उन लोगों को समझ में आता है तो वो उनके जाने के बाद, कस्टमर के जाने के बाद वहाँ पे वो अपना फ्लो जो है वो डिसाइड करते हैं बाय यूजिंग अ रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन। Elaboration focus on development or refine technical module of a software functions, features and constraints. अब यहाँ पे उन लोगों के जाने के बाद यहाँ पे डिसाइड होता है कौन से फंक्शंस हमें चेंज करने पड़ेंगे, कोडिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी। कोडिंग लैंग्वेज अगर उन्होंने सी में की है पुराने वर्जन के अंदर, तो हमें वही वर्जन में अपडेटेड
वही लैंग्वेज के अंदर अपडेटेड वर्जन कौन सा आया है वो यूज करके चेंजेस पॉसिबल है क्या नहीं है, वो इलैबोरेशन के अंदर चेक किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज ए negotiation. Okay, negotiation. In this task the software engineer, ओके अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। लाइक कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये थी तो आपने ये चेंजेस क्यों नहीं किए। सम टाइम यहाँ पे ये डेवलपर के बीच में भी हो सकते हैं, सम टाइम यहाँ पे ये कस्टमर और प्लस डेवलपर दोनों के बीच में हो सकते हैं। ठीक है, it has done between the customer and what the customer want, what are the requirement and what are the limited business resources are present in that particular limited time। अब यहाँ पे लिमिटेशन हो सकती है टाइम की, या फिर कस्टमर के रिक्वायरमेंट की, रिसोर्स के रिक्वायरमेंट की, उनके जो भी गोल्स थे वो अचीवमेंट की। तो यहाँ पे निगोसिएशन का मतलब होता है कि उनके रिक्वायरमेंट के अंदर कोई चेंजेस आ गए या फाइनेंशियली कुछ चेंज हुआ है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ए स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन के अंदर अब हमारा यहाँ पे फाइनल डक यानी कि फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है। यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट रेडी होने के बाद हम लोग यहाँ पे उसमें डिफरेंट थिंग्स ऐड करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू अ डिफरेंट पीपल। अगर हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल का इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, अगर ग्रुप ऑफ पीपल का इंटरव्यू ले रहे हैं हम इंस्पेक्शन के टाइम पे, तो उनकी रिक्वायरमेंट सबकी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे प्रेजेंट होगी, कैसे ऐड करेंगे हम, ये चेक करेंगे। इट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, इट्स नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डिसाइड करेगा कि यहाँ पे सभी अलग अलग पर्सन की रिक्वायरमेंट को हम एक पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर कैसे फुलफिल कर सके। इट डिस्क्राइब द फंक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे सारी कंप्यूटर बेस्ड जो भी रिक्वायरमेंट थी वो स्पेसिफाई की जाएगी। एक बार हम लोग टेस्टिंग करेंगे इसकी, इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे और वो परफॉर्मेंस कैसे वर्कआउट हो रही है वो भी देखेंगे। ओके, और अब यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, जो भी फॉर्मेट है या फिर जो भी उनको ग्राफ चाहिए थे, टेक्सचर चाहिए थे, फॉर्मेलिटीज या फिर फॉर्म्स के साइज थे, इंफॉर्मेशन शो करनी थी, ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद स्पेसिफिकेशन के अंदर सारी की सारी चीज़ें ऐड होने के बाद टेस्ट करेंगे लास्ट में टेस्टिंग के थ्रू, और लास्ट में हम लोग शो करेंगे ये सारा डेटा हमारे सारे के सारे कस्टमर को या क्लाइंट्स को। नेक्स्ट वन इज ए वैलिडेशन। अब यहाँ पे वैलिडेशन भी चेक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैलिडेशन जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है चेक करेंगे कि यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट, द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम इज गोइंग और नॉट। ओके, this task is concerned with ensuring that the gathering requirement is in so specification meet certain standard of quality। ओके, स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या होता है, एक सर्टेन स्टैंडर्ड प्रेजेंट होता है, वो स्टैंडर्ड की क्वालिटी डिसाइड होती है और वो एग्जामिन की जाती है। ऑल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैज बीन स्टेट डेफिनेटली। ओके, अब यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिसाइड होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर ही इन्हें चेक किया जाता है कि उनकी रिक्वायरमेंट एक्चुअल में वैसी ही है या नहीं है। अभी यहाँ पे क्या होता है, वैलिडेशन के अंदर हम लोग चेक करते हैं ओमिशंस प्रेजेंट है क्या, इनकंसिस्टेंसी प्रेजेंट है क्या, एरर्स आ रही हैं तो एरर डिटेक्ट हो रही है क्या, एरर डिटेक्ट होने के बाद प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चेक छोटी छोटी चीज़ें जो है वैलिडेशन के थ्रू चेक की जाती है। नेक्स्ट वन है थर्ड पॉइंट, द वर्क प्रोडक्ट कन्फर्म टू द स्टैंडर्ड इस्टेब्लिशमेंट फॉर द प्रोसेस प्रोजेक्ट एंड द प्रोडक्ट। ओके, अब यहाँ पे लास्ट में हम लोगों का पूरा वर्किंग जो है एप्लीकेशन का वो चेक किया जाता है, उनकी स्टैंडर्ड जो है, प्रोसेस जो है, प्रोडक्ट जो है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वो सारी चेक की जाती है वैलिडेशन के थ्रू। नेक्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। अब रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, हम लोगों का जो एक्चुअल में ड्रीम था और जो हम लोगों ने एक्चुअल में क्रिएट किया है हमारा प्रोजेक्ट, वो कंपेयर किया जाता है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट द प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई, कंट्रोल एंड ट्रैक रिक्वायरमेंट। ठीक है,
प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, और उसका ट्रैक जो है अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू अ कस्टमर रिक्वायरमेंट, वो चेक किया जाता है. There is change in requirement at any time as each requirement is assigned uniquely identified. कभी कभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट के अंदर भी चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट के चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर फ्रेम, अकॉर्डिंग टू योर सॉफ्टवेयर वर्किंग चेंज हो सकते हैं. तो ये आइडेंटिफाई करता है उन्हें यूनिकली, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे भी कीज प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट वन इज ए इस्टेब्लिशिंग ग्राउंड वर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में, और यहाँ पे वेरियस स्टेक होल्डर जो है, यानी कि जो भी हमारे अलग अलग क्लाइंट्स है, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स प्रेजेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट को हम गैदर करेंगे. गैदर करने के बाद हर एक टीम के अंदर उन्हें, अभी यहाँ पे ये जो टीम्स है, ये टीम्स के अंदर हम उनको इंट्रोडक्शन देंगे. इंट्रोडक्शन देने के बाद वहाँ पे हर एक टीम अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ सकती है यहाँ पे अलग अलग स्टेक होल्डर्स को. Requirement gathering for the project is done where various stakeholders and software engineer work together. जैसे मैंने अभी आपको बताया था, स्टेक होल्डर और प्लस हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ये सारे प्रेजेंट होते हैं. ये सभी अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टेक होल्डर्स को. सो नाउ लेट अस सी, there are various tasks present. So let us see. First one, to identify the various stakeholder in the project. अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है जो एक डेवलपर की है, डेवलपर की तरफ से वो ट्राई करेगा हर एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए, और हर एक पर्सन का रोल क्या है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर. अगर आपको बोल रही हूँ कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सॉफ्टवेयर हम लोगों के लिए ऐसा होना चाहिए कि मुझे सपोज फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एटीएम के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए. तो एटीएम मशीन में सबसे पहले वहाँ पे मैनेजर आएगा, एक एडमिन आएगा, एम्प्लॉय आएंगे, ठीक है, कस्टमर आएगा. तो यहाँ पे सभी के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है ना. एडमिन तो सिर्फ वहाँ पे अपनी लॉगिन करके सबके ऊपर चेक वहाँ पे रखे चेक करेगा सबको, सबकी वर्किंग कैसे चल रही है. एडमिन हमारा गॉड होता है, गॉड आई की तरह, वो सबको सिर्फ देखेगा. लेकिन मैनेजर जो है, मैनेजर को तो पूरा हिसाब रखना पड़ेगा, किसने कितना डेटा, सॉरी कितने पैसे किसने कब ट्रांसफ़र किए, कितने बजे किए, ठीक है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, और कितने पैसे डिडक्ट हुए एंड ऑफ द डे में, कितने पैसे बचे, डेबिट कितने हैं, क्रेडिट कितने हैं. नेक्स्ट वन आता है एम्प्लॉय. अब एम्प्लॉय अपने अपने तरीके से अलग अलग स्टेक होल्डर की इंफॉर्मेशन रखेगी. एक ही कस्टमर के वहाँ पे अलग अलग वहाँ पे अकाउंट हो सकते हैं, सेविंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट, करंट अकाउंट, कितने भी अकाउंट, तो उनकी इन्फॉर्मेशन मैनेज करेंगे. न्यू वहाँ पे किसी ने अगर बैंक अकाउंट ओपन करना है तो वो रखेंगे. तो यहाँ पे हर एक स्टेक होल्डर का रोल अलग है. मैनेजर का रोल अलग है, एम्प्लॉय का रोल अलग है, ठीक है, एडमिन का रोल अलग है. तो ये सारे के सारे अलग अलग रोल वाले पर्सन से हर एक डेवलपर क्रॉस क्वेश्चनिंग करके पूछेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है. उनकी रिक्वायरमेंट जानने के बाद वहाँ पे अच्छे से वो लोग सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. और ये सारी चीज़ें अगर पहले ही कम्युनिकेशन में प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, तो आपका सॉफ्टवेयर इजीली रेडी हो सकता है विद इन गिवन टाइम. द important task in groundwork is to identify the various stakeholder in the project. Stakeholder in anyone who benefit in a direct or indirect way from the system which is being developed. अब यहाँ पे जो भी सिस्टम हमारा बनने वाला है, अगर शुरू में ही हम लोगों ने उनसे पूछ लिया तो यहाँ पे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या एरर क्रिएट नहीं होंगे. नेक्स्ट वन यहाँ पे, टू रिकॉग्नाइज मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज. जैसे मैंने अभी आपको बताया, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक स्टेक होल्डर्स के सोचने का तरीका अलग अलग होगा. ज़रूरी नहीं है कि जो एडमिन थिंक कर रहा है वही आपका एम्प्लॉय थिंक करेगा, और जो एम्प्लॉय थिंक कर रहा है वही आपके मैनेजर थिंक करेंगे. नहीं, यहाँ पे हर एक स्टेक होल्डर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहता है. और यहाँ पे ये डेवलपर को कंपलसरी जानना होता है कि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू पर्सन का किस वे में है, कौन सा पर्सन क्या चाहता है, कौन से एम्प्लॉय की क्या रिक्वायरमेंट है वो सॉफ्टवेयर के अंदर. तो ये सारी चीज़ें हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज़ के अंदर. नेक्स्ट वन है थर्ड वन, वर्किंग टूवर्ड्स कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन का मतलब होता है टारगेट अचीव करना विद इन अ गिवन स्पेसिफिक टाइम और विद इन अ गिवन
structure or within a given, you can say, money. To achieve the target in specified time and infrastructure limit, the work should be carried out in the collaboration manner. For this, periodic meetings and feedback sessions are to be conducted in a planned manner. जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये सारी चीज़ें डिसाइड होगी और ये सारी चीज़ें हमें हर एक 15 दिन बाद करनी पड़ेगी कि हम लोगों ने इतना प्रोजेक्ट बनाया है, आप लोग एक बार आके चेक कर लो, आपको कोई रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा के ऐड करने हैं तो आप वो ऐड कर सकते हो। और इसी के वे में हम लोगों का टाइम डिसाइड होता है कि आफ्टर 15 डेज वी विल गोइंग टू मीट अगेन आफ्टर 15 डेज। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अगर हम लोग री इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो री इंजीनियरिंग में ऑलरेडी आपका सॉफ्टवेयर हाफ क्रिएटेड है, आपको हाफ फिर से क्रिएट करना है, न्यू क्रिएट करना है, अपडेटेड करना है, तो उसके बारे में डिस्कशन होगा। Now the next one, asking first question to the stakeholder. The first question to the stakeholder are really of a great important because they give the basic idea behind work to be done and help to identify all stakeholder of the system. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे लिए एज अ डेवलपर, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में ही हम लोगों को पता चलता है कि कौन से स्टेक होल्डर प्रेजेंट है, हर एक स्टेक होल्डर के वहाँ पे क्या चांसेस हो सकते हैं अपडेशन के, वहाँ पे हर एक स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है, हमें एक्चुअल में पूरा फ्रेम फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में समझ में आता है। नाउ नेक्स्ट वन इज अ रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट हमने उसमें लिखा था कोलैबोरेशन, अभी हमने लिखा था, तो यहाँ पे वही कोलैबोरेशन का पार्ट है, कोलैबोरेटिव करके, कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो यहाँ पे भी सेम हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रेजेंट होंगे, नेक्स्ट होंगे ये मीटिंग कब कब लेनी है वो हम डिसाइड करेंगे, मीटिंग कंडक्ट करने के बाद वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लस स्टेक होल्डर प्रेजेंट होंगे, फिर वहाँ पे कस्टमर और डेवलपर की बातचीत होगी मीटिंग के अंदर, नेक्स्ट एजेंडा डिसाइड होगा, इश्यूज कौन कौन से प्रेजेंट है वो डिसाइड होंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, नॉलेज एक्सचेंज होगी, एक फ्री ऑफ कॉस्ट में आइडिया आएगा यहाँ पे डेवलपर को कि उन्हें क्या क्रिएट करना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम लोग एक मैकेनिज्म के थ्रू शो कर सकते हैं, लाइक पीपीटी या स्प्रेडशीट या कोई चार्ट के तरह, या एक क्लासरूम में हम लोग ये एक मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि रिक्वायरमेंट क्या है हमारे कस्टमर की, हमारे क्लाइंट की, हमारे स्टेक होल्डर की। नेक्स्ट वन है क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट, दैट इज QFD। अब यहाँ पे क्वालिटी फंक्शन के अंदर क्या होगा, हम लोग क्वालिटी वहाँ पे चेक करेंगे, किसकी क्वालिटी चेक करेंगे हम लोग, हमारे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की प्लस हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट की। इट इज़ अ क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक दैट ट्रांसलेट द नीड ऑफ द कस्टमर इनटू टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने अभी आपको कहा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे प्रॉपरली वर्क हो रहा है क्या नहीं सॉफ्टवेयर, ये चेक किया जाएगा। QFD have QFD concentrate on, ओके, QFD अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे पहली चीज वो अंडरस्टैंड करेगा कि कौन से वैल्यू, कौन सी चीजें हमें फर्स्ट वहाँ पे डेवलप करनी है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट सबसे मेन फोकस किस पे है वो चीज़ें, नेक्स्ट सब पार्ट्स हमें कौन कौन से डेवलप करने हैं, अब यहाँ पे कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंगली प्रोसेस फ्लो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है थर्ड वन, यूजेज। ओके, अब यहाँ पे यूजेज सिनेरियोज के अंदर हम लोग देखेंगे कि एज पर अ कस्टमर रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है क्या नहीं की है, ओवरऑल और विजन हमारे सिस्टम का कैसे है, यहाँ पे फीचर्स कौन से प्रेजेंट है एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, एट द बिगनिंग पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पे हम लोगों की कौन सी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, टेक्निकल इश्यूज कौन से हो रहे हैं, हम वो सारे देखेंगे, चेक करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और हम ट्राई करेंगे वो सारी चीज़ों को फिक्स करने के लिए, रिमूव करने के लिए। और ये सारी चीज़ों को फिक्स करने के बाद हम लोग फिर से ट्राई करेंगे कि वो फंक्शंस को दोबारा रन कर सके, फीचर्स को ऐड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा फोर्थ पॉइंट, इलिसिटेशन वर्क प्रोड्यूस।
ओके, इलिसिटेशन वर्क प्रोडक्शंस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। अब ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट जो हमने कलेक्ट की थी इलिसिटेशन के थ्रू, ठीक है, इलिसिटेशन के थ्रू, इंस्पेक्शन के थ्रू, जो भी हम लोगों ने रिक्वायरमेंट कलेक्ट की थी वो प्रॉपरली वर्क में हो रही है क्या नहीं हो रही, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम एंड द प्रोडक्ट टू बी बिल्ट। ये सारी चीज़ें चेक होगी। हमारे प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, सिस्टम का साइज़ क्या है, एक्स्ट्रा की साइज़ कितनी लग रही है हमें, टेक्निकली कौन सी कोडिंग लैंग्वेज यूज़ होगी, ये सारी छोटी छोटी बैक एंड फ्रंट एंड ये सारी चीज़ें डिसाइड होगी। और ये सपोर्ट कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। नेक्स्ट वन है फिजिबिलिटी स्टडी। ओके, feasibility study is the practical extent to which a project can be performed successfully। अब हम लोग यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर ट्राई करेंगे हमारे एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल सॉफ्टवेयर को, एक्चुअल एप्लीकेशन को रन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर। ओके, to evaluate feasibility, a feasibility study is to perform which determine whether the solution considerate to the accomplishment that a requirement is practical and workable in the software। हम लास्ट में फिजिबिलिटी स्टडी में क्या करने वाले हैं, हमारे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट एक्चुअल में क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के साथ मैच हो रही है क्या नहीं हो रही है, वो चेक करेंगे। नेक्स्ट, प्रैक्टिकली ये वर्क कर रही है क्या नहीं कर रही है, कोई एरर तो प्रेजेंट नहीं है, अगर एरर है तो रिमूव करेंगे, ठीक है, ये सारी देखेंगे हम चीज़ें। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्निकल फिजिबिलिटी है फिजिबिलिटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वन है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, नेक्स्ट वन इज ए ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, ठीक है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के अंदर हमारा वेब सर्वर होगा, हमारे पास डेटाबेसेस प्रेजेंट होंगे, इंटरनेट प्रेजेंट होगा। टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर हम लोगों के पास हार्डवेयर प्रेजेंट होंगे। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के अंदर हम लोगों के पास फाइनेंस प्रेजेंट होंगे, ग्रोथ प्रेजेंट होंगी, टाइम लिमिट प्रेजेंट होंगे, ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट होगी। सो लेट अस सी now first one, or technical feasibility। Okay, a technical feasibility, it's also referred to a technical resources need to be developed, purchase, install or operate the system। टेक्निकल फिजिबिलिटी वर्ड में ही आपको पूरा मीनिंग मिलता है। टेक्निकल का मीनिंग ही होता है कि हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी हम लोगों के पास इंस्टॉल है वो टेक्नोलॉजी, तो हम लोगों को वो री इंजीनियर करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम लोगों ने किसी और से परचेस की है, फिर से हमें वो री इंजीनियर करनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी, अपडेट करनी पड़ेगी, ऑपरेट करने पड़ेगा वो सिस्टम को। इट ऑल्सो यूजेस अ करंट रिसोर्सेज सच एज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का यूज़ होगा टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर, which are required to accomplish user requirement in software within the allocated time and budget। टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर हम लोगों के पास यहाँ पे बजट, टाइम, सारी चीज़ें डिसाइड होगी और हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे कस्टमर के रिक्वायरमेंट को इन गिवन टाइम हम लोग उन्हें दे सके, पूरा सॉफ्टवेयर रेडी कर सके। For this, the software requirement for this software development team determined whether the customer resource and the technology can be upgraded or added in the software to a complete specified user requirement। अब यहाँ पे जो डेवलपर है, डेवलपर की साइड पे डेवलपर की टीम डिटरमाइन करेंगी करंट रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी ये कितने अपडेट हो सकते हैं, ठीक है। और ये कितने अपडेट होने के बाद हमारे जो पुराना सॉफ्टवेयर है जो कस्टमर लेके आया है वो प्रॉपरली हम अपडेट करने के बाद रन कर पाएंगे क्या उसके पीसी पे, उसके हार्डवेयर पे, वो चेक किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज ए ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। operational feasibility means the proposed system, okay, sorry, the operational feasibility means that the proposed system must be used effectively and has been developed। okay, अब यहाँ पे ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के अंदर हमारा जो प्रपोज सिस्टम है वो एक्चुअल में इफेक्टिवली डेवलप किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। इट uses that the extent to which the requirement software performed a series of steps to solve the business problem and user requirement। अब यहाँ पे स्टेप्स प्रेजेंट होगी, रिक्वायरमेंट होगी सीरीज की, ये यूज़ की जाएगी और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाएगा।
Next one is a economic feasibility. It determines the required software is capable of gathering फाइनेंस अगेंस्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, फाइनेंशियल गेन्स हम लोगों के कितने होंगे वो देखा जाएगा, कितने प्रॉफिट होंगे वो देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होगी. इट इन्वॉल्व्स द कॉस्ट इनकर्ड टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम, इस्टेब्लिश्ड, ओके, इस्टेब्लिश कॉस्ट ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग फिजिबिलिटी स्टडी एंड सो ऑन. जैसे मैंने अभी आपको बताया, इकोनॉमिक मीन्स बजट डिसाइड होगा. ठीक है, अब ये बजट के अंदर सबके अलग अलग बजट होंगे, मतलब कितने परफॉर्मेंस के लिए कॉस्ट होगा, डेवलपमेंट में टीम में कितना होगा, हार्डवेयर अगर एक्स्ट्रा के ऐड कर रहे हैं तो वो कॉस्ट अलग से होंगी. ये सारी चीज़ें जो भी फाइनेंशियली पॉसिबल है वो सारी फिजिबिलिटी स्टडी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर प्रेजेंट होंगी. नाउ लेट अस सी व्हाट इज फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स. To develop any system, the user system analyst need to do collect fact and relevant information. अगर कोई भी सिस्टम आपको क्रिएट करना है, री इंजीनियर करना है, तो सबसे पहले आपको उसके फैक्ट्स जो है वो पता करने पड़ेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले है इंटरव्यूज. ठीक है, अब ये इंटरव्यूज एक मेथड है जहाँ पे आप लोग ये मेथड्स को यूज करके, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. इंफॉर्मेशन चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो, सब्जेक्ट की हो, डिस्क्रिप्शन की हो, प्रॉब्लम्स की हो, ऑप्शंस की हो, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी. अब इंटरव्यू जो है ये एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है फॉर कलेक्टिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंडिविजुअल और फ्रॉम अ ग्रुप. ठीक है, ये इंटरव्यू जो है ये बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कंपनी के किसी भी कस्टमर के साथ या फिर क्लाइंट के साथ या ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल्स. ठीक है, और यहाँ पे ये फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, वहाँ पे पीपल्स प्रेजेंट होते हैं. फेस टू फेस इंटरव्यू विद पीपल्स एंड रिकॉर्ड देयर रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड द रिस्पॉन्ड एंड एनालिसिस डिस्कस विद ईच अदर. अब यहाँ पे ये फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, रिकॉर्डिंग प्रेजेंट होगी, ये सारी चीज़ों की. और यहाँ पे डिस्कशन के बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी. बाद में इंटरव्यू के बाद ये एनालिसिस डिटेल स्टडी की जाएगी. अब यहाँ पे ये टाइप ऑफ इंटरव्यू भी टू पार्ट में फिर से डिवाइडेड है. फर्स्ट वन होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, नेक्स्ट वन होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. ठीक है, अभी ये जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है ये एक सिंगल पीपल का इंटरव्यू होता है. In this type, every single information together the follow pattern and manner of discussion. अब यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, क्लोज इंटरव्यू है, यहाँ पे एक एक पर्सन का इंटरव्यू होता है. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया था वो बैंक के बारे में और वो सारी चीज़ों के बारे में, तो वहाँ पे हर एक पर्सन से इंटरव्यू लिया जाता है सिंगली, फेस टू फेस, 1-to-1 पर्सन इंटरव्यू लिया जाता है. इसी को कहते हैं क्लोज इंटरव्यू. नेक्स्ट वन होता है अनक्लोज्ड इंटरव्यू, दैट इज एन ओपन इंटरव्यू. अब ये ओपन इंटरव्यू के अंदर सभी एक साथ आते हैं, एक साथ बैठते हैं और वहाँ पे वो लोग डिस्कस करते हैं और वहाँ पे वो डिस्कस करने के बाद इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. इन दिस टाइप ऑफ द इंटरव्यू the information together is not decided in advance, more feasibility and less based. ठीक है, अब यहाँ पे ये नॉर्मली सिर्फ बातचीत करते हैं, इन्हें कोई प्लान नहीं पता होता, ये सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर देते हैं, फिर वो आंसर पूछते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं. और ये ओपन इंटरव्यू होता, सॉरी ये क्लोज इंटरव्यू होता है जहाँ पे सभी लोग एट अ टाइम प्रेजेंट होते हैं, कोई भी क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है किसी भी पर्सन को. नेक्स्ट वन इज ए क्वेश्चनरीज. ओके, it is a technique used to interact information from large number of people. अब क्वेश्चनरीज के अंदर यहाँ पे बहुत सारे पर्सन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दिस टेक्निक कैन बी अडॉप्ट एंड यूज्ड ओनली बाय अ स्किलफुल सिस्टम एनालिस्ट. अब यहाँ पे ये टेक्निक जो है वो वहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं सिस्टम एनालिस्ट के थ्रू. और डॉक्यूमेंट विद प्री डिफाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस and respective option is handed over to all customer to answer, which are collected and compiled. अब यहाँ पे क्या किया जाता है, सीरीज ऑफ क्वेश्चन डिसाइड की जाती है. और यहाँ पे ये जब सीरीज ऑफ क्वेश्चन प्रेजेंट होती है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है पेपर पे हम लोग प्रिंट करके लाते हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है नॉर्मली वो उनका जो ग्रुप है, ठीक है,
वो ग्रुप जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास आए हैं अपनी रिक्वायरमेंट लेके, उन सबको हम पास करते हैं वो क्वेश्चन पेपर जहाँ पे क्वेश्चन लिखे होते हैं। अब वहाँ पे हर एक पर्सन अपने अपने अकॉर्डिंगली देयर सेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग देयर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वो आंसर लिखेंगे वहाँ पे, और यहाँ पे ये आंसर लिखने के बाद वो हैंड ओवर करेंगे सिस्टम एनालिस्ट को। दैट इज ए क्वेश्चनरीज। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, सीरियल नंबर, नेम ऑफ डिग्री, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड। तो अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर आप देख सकते हो, मेल, जेंडर, हॉबीज और अचीवमेंट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे एक क्वेश्चनरीज डिजाइन की है जहाँ पे एन नंबर ऑफ आप बोल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग बोल सकते हो, हाँ, डिटेल्स कलेक्ट करनी है हम लोगों को कि कौन से पर्सन ने कितनी क्वालिफिकेशन की डिग्री कलेक्ट की है, कितने ईयर्स में कलेक्ट की है, कौन से बोर्ड्स में, पासिंग ईयर क्या है। इन शॉर्ट हम लोग उसका एक शॉर्ट एक पेज का रेज्यूमे कलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है सबको, ये एक फ्रेम, ये फ्रेम या फिर ये एक पेपर हम सभी पर्सन को पास करेंगे। सबके यहाँ पे नेम्स अलग अलग होंगे, क्वालिफिकेशन, डिग्री, मेल, फीमेल, अचीवमेंट, सब पर्सन्स की अलग अलग होंगी। और ये अलग अलग इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करके हमारी फाइल में अटैच कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली हम एक छोटी सी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, और वो वेबसाइट को हम नाम दे सकते हैं रेज्यूमे। नेक्स्ट वन है रिकॉर्ड व्यू। रिकॉर्ड व्यू क्या करता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है, डेटा कलेक्ट करके रखता है सिस्टम्स का, और यहाँ पे ऑपरेशन कौन कौन से प्रेजेंट है वो कलेक्ट करके रखता है। The information related to the system is available in documentation, newspaper, magazine, journals, electronic media, etc. The record view help the analyst to get valuable information about the system and the organization. ठीक है, रिकॉर्ड व्यू के अंदर हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे न्यूज़पेपर हो, चाहे जर्नल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कुछ भी प्रेजेंट हो, हम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड व्यू के अंदर। नेक्स्ट वन इज ए ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एनालिस्ट के थ्रू होती है, जहाँ पे एनालिस्ट जो है वो ऑब्जर्व करता है एक्चुअल वर्क ऑफ द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग सिस्टम और अ मैनुअल सिस्टम। यहाँ पे एनालिस्ट जो है वो वर्क करता है, ऑब्जर्व करता है एग्जिस्टिंग सिस्टम को, और प्लस हमारे जो अभी करंट सिस्टम है जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को। दे ऑब्जर्व द वर्क फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट एट कस्टमर एंड एंड हाउ एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स। यहाँ पे वो वर्क देखता है, ऑब्जर्व करता है वर्क फ्लो कैसे जा रहा है, हमारे जो भी थे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या थी, अगर एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे हम फिक्स कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें देखते हैं। द एक्सपर्ट टीम itself finds some conclusion which help to form requirement expect from the सॉफ्टवेयर। अगर जो भी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड सॉफ्टवेयर है, उसे हम चेक करेंगे, कंक्लूजन ऐड करेंगे। यहाँ पे टीम होती है एक्सपर्ट की प्रेजेंट, वो ये सारी चीज़ें चेक करेंगे और कंक्लूजन डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट वन इज ए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, दैट इज SRS। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्पेसिफिकेशन जो है आप लोग बोल सकते हो एक गाइडलाइन डिसाइड होती है। ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने क्या क्या किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक होती है। तो सो लेट अस सी how the system is expected to perform. So let us see the characteristic of system requirement specification. There are various characteristics of SRS. First one is a correct. Okay, the SRS should be made up to the date when appropriate requirement are identified. जिस दिन आपका डिसाइड हुआ है डिलीवरी का सॉफ्टवेयर का, उसी वो दिन से थोड़े दिन पहले ही आप लोगों का सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के साथ साथ कंप्लीट होके रन होना चाहिए। Next one is a ambitious. Okay, when the requirement are collective are correctly understood, and then only it is possible to write an ambitious SRS. ठीक है, एम्बिशियस अभी यहाँ पे क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है एम्बिशियस एक टाइप का, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोग लिखते हैं कि आपका वर्क फ्लो कैसा है, कौन से बटन पे क्या होगा, आप लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन, कंप्लीट
अब यहाँ पे कंप्लीट का होता है कि हम लोगों का डिजाइन रेडी है, सब कुछ रेडी है, पूरा रेडी है। टू मेक द एसआरएस कंप्लीट इट शुड बी स्पेसिफाइड व्हाट अ सॉफ्टवेयर डिजाइनर वांट्स टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या क्या थी, वहाँ पे वो सारी चीजें कलेक्ट होने के बाद हमारा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट होता है, रेडी होता है। Consistent, it should consistent when reference to the functionalities identify। कंसिस्टेंस यहाँ पे पता कब चलती है, जब हमारी फंक्शनैलिटी जो है, वहाँ पे हमें फंक्शनैलिटी जब पता हो कि कौन सा फंक्शन कब रन होगा, तभी हमारी कंसिस्टेंसी डिसाइड होती है। स्पेसिफिक, इट रिक्वायर, द रिक्वायरमेंट शुड बी मेंटेन्ड स्पेसिफिकली। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, क्यों थी, ये हमें मेंटेन करनी पड़ती है स्पेसिफिकली, क्यों हमने ये चेंजेस किए, ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकली हमें लिख के रखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट वन इज ए ट्रेजेबल with what is the need for mentioning requirement or maintaining the requirement, this should be correctly identified। ठीक है, अब हमारे ये सभी सारी चीज़ें लिख के रखनी पड़ती है, क्यों रिक्वायरमेंट थी, क्या क्या वजह से हमने चेंजेस किए, क्या क्या चेंजेस किया, चेंजेस होने के बाद वहाँ पे क्या अपडेट हुआ है। ठीक है, करेक्ट हमने कौन सी चीज़ें की हैं, कितने टाइम पे की है, एम्बिशियस क्या थे, ये सारी चीज़ें हम एसआरएस के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट होता है, और जो ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होता है उसके अंदर स्पेसिफिक हर एक चीज़ का, हर एक मॉड्यूल के बारे में लिखा जाता है, उनके वर्क फ्लो, उनके टेबल्स, रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, सब कुछ लिखा जाता है। ओके, नाउ यू कैन सी द टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। फर्स्ट वन इज a functional performance interface, maintainability, reliabilities, safety, quality, operational and resources। ठीक है, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है एसआरएस के अंदर। थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव अंडरस्टूड योर चैप्टर एंड यू हैव enjoyed it। थैंक यू।